শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 52 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 1.52 অনওয়ার্ডস। श्लोक शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर एक्सीलेंट। हाँ, 52 नंबर श्लोक। इसको एक व्यक्ति रिपीट करिए। कौन करना चाहेंगे? ओके। यावनहं यथा भावो यावनाहं यद्रूपा गुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। फैन ऑफ करना पड़ेगा, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं। अनुवाद। भगवान आगे बोल रहे ब्रह्मा जी को, আমার অনুগ্রহে মানে মেয়ের কৃপা আছে তুমি আমার রূপ গুণ ও লীলা সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করো। तात्पर्य बहुत मन देकर तात्पर्य सुनिए, बहुत मन देकर, नहीं तो छूट जाएगा, बीच में पकड़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। बहुत हिंदी भाषी है, सब बंगाली सुन रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड मैंने कितना आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ এক অতি গোপনীয় রহস্য এবং তার সেই রূপের লক্ষণগুলি জড় উপাদান সম্ভূত সমস্ত বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। भगवान का जो स्वरूप है वो तो मटेरियल चीज से बना हुआ नहीं है ना। श्याम सुंदर, नारायण, राम, गौर सुंदर आदि भगवाনের অনন্ত রূপ এবং তার বিভিন্ন রূপের বর্ণাগুলি হচ্ছেন শ্বেত, রক্তপীত ও ঘনশ্যাম প্রভৃতি ইত্যাদি। ओके, कॉम्प्लेक्शन भी अलग अलग है। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবান রূপে এবং শুষ্ক জ্ঞানীদের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তার গুণাবলী গিরি গোবর্ধন ধারণ করার মতো অসাধারণ কার্যকলাপ, দ্বারকায় 16,000-এরও অধিক মহিষীকে বিবাহ, ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে রাস ও নৃত্য এবং সেই নৃত্যে উপস্থিত প্রতিটি গোপিকার সঙ্গে আলাদাভাবে নৃত্য করার জন্য নিজেকে বিস্তার, এই রকম অসংখ্য এবং অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। এই লীলাসমূহের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে ভগবত গীতার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের प्रकाश। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है जो भगवत गीता में माने कुरुक्षेत्र युद्ध में जो भगवान ने ज्ञान दिया था। এই ভগবত গীতা সারা পৃথিবীর সমস্ত স্তরের পণ্ডিত মণ্ডলী শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন এবং যতজন মনোধর্মী জ্ঞানী রয়েছেন ততভাবে তার বিশ্লেষণ হয়। এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব অবরোহ পন্থায় ब्रह्मार काछे प्रकाशित হয়েছিল। ठीक है, ये भगवत गीता का तत्व ब्रह्मा जी के पास भी प्रकाशित हुआ था। एज इट इज नहीं हो सकता है मे बी, लेकिन तत्व तो वही था, कृष्ण तत्व जो भगवत गीता का जो सिद्धांत है। आगे आरोह पंथाय এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আরোহ পন্থা ভগবানের মহৎ অনুগ্রহের ফলে ব্রহ্মার মতো ভক্তের কাছে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব থেকে সুখদেব
এবং এভাবেই গুরু শিষ্য পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये ज्ञान ट्रांसफर होता है। असेंडिंग समझते हैं आप अशोक प्रभु? नीचे से ऊपर। हाँ। सर ऊपर से नीचे, ऊपर से प्रभु जी, ऊपर से नीचे ना। प्रभु डिसेंडिंग ऑर्डर में। आरोह क्या लिखा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखा है इंग्लिश में? असेंडिंग, असेंडिंग। तो फिर डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? There is a line, the truth of these mysteries are revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. Very clearly it's written. तो वो नीचे से ऊपर कैसे हुआ? ये तो ऊपर से नीचे हो रहा है प्रभु जी। ऊपर से नीचे है ना, descending order. From Krishna to Brahma to Narayan to Vyas. हाँ, फ्रॉम असेंडिंग होगा ना मैम प्रभु जी। Descending मतलब नीचे की ओर आना, ascending तो ऊपर जाना हुआ। It's very clearly written, प्रभु इंग्लिश में। In middle line है, the truth of these mysteries are revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. Lord's mercy descends to the devotee like Brahma to Narad to Vyas, from Vyasdev to Shukdev. हिंदी में ठीक लिखा है, अवरोह मतलब डिसेंडिंग होता है। हरे कृष्ण, सॉरी मेरा ये नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। क्या बोल रहे थे आप अशोक प्रभु? प्रभु इंग्लिश में लिखा हुआ है, the truth of these mysteries was revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. ओहो, मेरा मेरा प्रभु नीचे से ऊपर कैसे हुआ? ऊपर से नीचे हो रहा है ना प्रभु। हाँ, the Lord's mercy descends to the devotee like Brahma, through अच्छा, Brahma to okay, Narad, okay. from very Got it. clearly written. Yes. मैं गलत पढ़ा। उसमें लिखा है अवरोह। वही এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব অবরোহ পন্থায় ব্রহ্মার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। হ্যাঁ, ডিসেন্ডিং অর্ডার, करेक्ट। आरोह पंथा ये ज्ञान लाभ करा जाए ना, तो सही। असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं होगा, शिष्य तो गुरु को नहीं सिखाएगा, गुरु शिष्य को सिखाएगा। আমাদের জড় প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা কখনোই ভগবানের এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব জানতে পারবো না। তা কেবল তার কৃপার প্রভাবেই যথার্থ ভক্তের কাছে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভক্তের সেবার বিভিন্ন মাত্রার অনুসারে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে তাদের কাছে প্রকাশিত হয়, है ना? सही ना? सब अलग अलग चेतना स्तर पे हैं, सब अलग अलग हिसाब से अपना अपना चेतना के हिसाब से सब समझ पा रहे हैं। प्लस और एक चीज भी है, एक बार पढ़ा जो समझा, फिर से जब चेतना चेतामृत पढ़ रहे हैं तो उपलब्धि तो और ज्यादा ही हो रहा है ना, अलग भी हो रहा है। পক্ষান্তরে বলা যায় নির্বিশেষবাদীরা যারা শ্রবণ কীর্তন আদি পূর্বোক্ত ভক্তঙ্গের মাধ্যমে বিনীতভাবে ভগবত সেবা ব্যতীত মানে এসে বঞ্চিত হয় না নির্বিশেষবাদী লোক, তাদের সীমিত জ্ঞান ও রোগগ্রস্ত জল্পনা কল্পনার উপর নির্ভর করে ভগবানকে জানতে চায়, তারা কখনোই অপ্রাকৃত জগতের রহস্য ভেদ করতে পারে না, যেখানে জড়াতীত परम सत्य तार दिव्य सविशेष रूपे विराजमान। तो ये निर्विशेषवादी लोग दुर्भागी हैं। समझ में आ रहा है सबको क्यों दुर्भागी है? যে সমস্ত সাধারণ আধ্যাত্মবাদী জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, जैसे हम लोग, তারা সেই পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে মনে করে।
যে সমস্ত সাধারণ আধ্যাত্মবাদী জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, তারা সেই পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন সেই রহস্য উন্মোচিত হয়, তখনই নির্বিশেষ ধারণার निरसन है। हाँ। जब भगवान की कृपा होता है हम लोग के ऊपर और ये रहस्य, ये जो गुह्य तत्व जब प्रकाश होता है, तখন हम लोग का जो निर्विशेष यानी भगवान का आकार नहीं है, ये वाला जो आइडियोलॉजी है, ये आस्ते आस्ते क्षय हो जाता है, हम लोग सविशेष में आ जाते हैं। अगला श्लोक 53 नंबर। अहम एवासमेवग्रे अहमेवासमेग्रावे नान्याद्यत् सत् असत् परम् नान्यगस्त तदस्परम् पश्चादम यद् एतच्च पश्चादं ग्रति तच्च यो वशिष्येत् स्वस्म्यहम्। यो वा शिष्यसो यस्म्यहम्। অনুবাদ। सृष्टिर पूर्वे केवल आमी ही छिलाम, ये भी ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दे रहे, ठीक है, सब वही भगवान जो ब्रह्मा जी को बोला था। এবং সৎ অসৎ ও অনির্বচনীয় निर्विशेष ब्रह्म पर्यंत कोनो কিছুই अस्तित्व ছিল না। भगवान बता रहे सृष्टि के स्टार्ट में कोई कुछ नहीं था, ब्रह्म ज्योति भी नहीं था, मुकुंद प्राण प्रभु बता रहे। सृष्टिर परे ए समुदाय स्वरूपे आमी विराज करी এবং প্রলয়ের পর আমি কেবল অবশিষ্ট থাকব, भगवान बता रहे। क्लियर है? तात्पर्य, अहम শব্দটির অর্থ হচ্ছে আমি। তাই বক্তা যখন বলছে অহম বা আমি, তখন নিশ্চয়ই তার ব্যক্তিত্ব রয়েছে। करेक्ट? मायावादी दार्शनिकेरा बोले जे এই অহম হচ্ছে निर्विशेष ब्रह्म, মানে ब्रह्मज्योति बोल रहा है अहम, कोई सविशेष व्यक्ति नहीं बोल रहा है। মায়াবাদীরা ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের খুব গর্ব করে, কিন্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধে যারই কিছু ধারণা রয়েছে সে বুঝতে পারবে যে অহম মানে হচ্ছে আমি, এবং আমি বলতে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝায়। वस्तु तो कभी अहम नहीं बोलेगा ना। তাই পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার কাছে তার অপ্রাকৃত রূপ বর্ণনা করার সময় অহম শব্দটি ব্যবহার করে তার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। হরি বল। অহম শব্দটি বিশেষ অর্থবাচক, এটি অস্পৃষ্ট কোনো উক্তি নয় যে আমরা আমাদের খেয়াল খুশি মতো তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন অহম, তখন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান রূপে তার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পর কেবল পরমেশ্বর ভগবান ও তার নিত্য পার্ষদেরাই বর্তমান থাকেন। তখন কোনো জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। एक प्रश्न है आप लोग को, जब प्रलय होता है तब 14 भुवन में कुछ कुछ लोग प्रलय से प्रभावित नहीं होता है, वो कहां से और क्यों? ये क्लास दिन पर दिन डल बनते जा रहा है। डल समझते हैं आप? दिन पे दिन प्रश्न करने से सब चुप करके बैठा रहता है, या तो प्रश्न समझ नहीं आता है। तो जो भगवान के अंश रूप में अवतार लेते हैं वो लोग को तो कुछ भी नहीं होगा ना। मैं बोला ना, प्रश्न या तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा उत्तर देगा तो समझ में आता है कि प्रश्न ही समझा नहीं। प्रश्न समझ नहीं आया तो पूछिए क्या बोला आप, समझ नहीं आया। मेरा प्रश्न फिर से बता रहा हूं, प्रलय के समय कुछ लोग प्रलय से प्रभावित नहीं होता है। लोक माने 14 लोग, जैसे 14 भुवन है, कौन सा प्रलय से प्रभावित नहीं होता है।
बोली महामंजरी माता जी। तो ब्रह्मलोक ऊपर का जो पैरा पढ़े वो आप पढ़ तो लिए लेकिन उतना समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा। हिरण्य गौरांग प्रभु। और जो ऊपर में लोग है, जनोलोक, तपोलोक, महलोक, सत्यलोक, ये लोग प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, महरलोक से ऊपर आस्ते आस्ते प्रभावित नहीं होते प्रलय के समय। महरलोक आया था ना, आया था प्रसंग। पंकज प्रभु। तीन लोग, हम लोग का जो भू भव, तो ये तीन प्रभावित होता है, उसका ऊपर नहीं होता है। जे 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 लोग जन्म मृत्यु से भाई मिलता नहीं है, जे लोग जन्म मृत्यु से डरता नहीं है, माया का द्वारा आबद्ध है, ये लोग प्रलय से कोई भी डर आता नहीं है। हर किसी को तो ये महरलोक से ऊपर प्रलय से प्रभावित नहीं होता है। अभी एक सोचने वाला बात है कि क्यों नहीं होता है। हाँ, देखिए यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं। सृष्टिर पूर्वे एवं प्रलय पर केवल परमेश्वर भगवान ও তার নিত্য পার্শ্বদরাই বর্তমান থাকেন। तो ये महरलोक, जनलोक, तपलोक, इसमें कौन कौन जाता है? नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, योगी लोग जाता है। तो इन लोग तो भगवान का निर्विशेष का आराधना करता है, मालूम है ना? तो वो भी तो भगवान का आराधना ही हुआ। भगवान का निर्विशेष आराधना भी तो भगवान का ही आराधना हुआ। हालांकि वो टॉप क्लास नहीं है, लेकिन है तो ठाकुर जी का ही आराधना। तो यहाँ लिखा है ও তার নিত্য পার্শ্বদরা বর্তমান থাকে, তখন কোনো জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। वासुदेव বা ইদমগ্র, এই क्या श्लोक है? वासुदेव বা ইদমগ্র आशिन्न ब्रह्मा न च शंकर। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল বিষ্ণুই ছিলেন, এমনকি ব্রহ্মা বা শিবও ছিলেন না। শ্রী বিষ্ণু তার ধাম বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠ লোকেই শ্রী বিষ্ণু তার পার্শ্বদ পরিকর সহ বিরাজ করেন। ये तो मालूम है। ब्रह्म माने भगवान का वैकुंठ धाम में जितना अवतार उतना लोग, और भगवान हर एक लोक में अपने पार्षदों के साथ विराज करते हैं। চিদাকাশ সে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠ লোকেই শ্রী বিষ্ণু তার পার্শ্বদ পরিকর সহ বিরাজ করেন। ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে কালের প্রভাবে এই জড় সৃষ্টি লয় হয়ে যায়। লয় মানে প্রলয়। কিন্তু আরো একটি জগৎ রয়েছে যা কখনো লয় প্রাপ্ত হয় না। সৃষ্টি বলতে জড় সৃষ্টিকেই বোঝায়, কারণ চিৎ জগতে সবকিছুই নিত্য বিরাজমান এবং সেখানে কোনো সৃষ্টি বা লয় হয়নি। सृष्टि बोलेगा तो सिर्फ जड़ जगत का सृष्टि को ही तो समझा जाता है ना। भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो हमेशा था है। यस प्रभु बोलो, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर यदि विष्णु अलग अलग अवतारों के अनुसार वो अपने रूप में रहते हैं वहां पर पार्षदों के साथ, तो पार्षद लोग तो अपने अपने अंश के अनुसार एक ही पार्षद हैं जो प्रत्येक अवतार में आते हैं। एक ही पार्षद है। पार्षद जितने भी हैं भगवान के, तो वो तो अपना अपना अंश के अनुसार एक ही है ना। इस रूप में आए भगवान, जैसे हनुमान जी इस रूप में आए, या लक्ष्मण जी अमुक रूप में, नित्यानंद भगवान के रूप में आए। इस तरह से ये तो मतलब इनका अंश है। और जितने पार्षद हैं वे पार्षद भी तो जो क्या कहते हैं उनका ये भी रूप बदलते रहता है हर एक अवतार में। रूप बदलते रहता है हर एक अवतार में पार्षद। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? तो हर अलग अलग ये चिदाकाश में अलग अलग उनका अस्तित्व कैसे रहता है? वो तो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। समझ गया। तो मुरारी गुप्ता हनुमान जी का अवतार है, करेक्ट? हाँ। तो हनुमान जी, हालांकि यहाँ किम पुरुष वर्ष में रहता है। आप म्यूट करिए, पीछे से आवाज आ रहा है। हनुमान जी अगर सोचिए रामचंद्र जी का अयोध्या धाम में जाएगा तो वहां रहेगा, लेकिन मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी का ही प्रकाश है वो तो चैतन्य धाम में रहेगा महाप्रभु के साथ। चैतन्य धाम है ना, नवद्वीप धाम, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नवद्वीप है, वहां रहेगा। हालांकि हनुमान जी है। तो व्यक्ति अपने आप को प्रकाश करते हैं अलग अलग, भगवान की लीला में अलग अलग पार्षद लोग अलग अलग रूप में प्रकाश करते हैं। अच्छा प्रश्न है। और सब
अपना अपना प्रभु के साथ ही रहेगा। अच्छा माता जी, तो भगवान के जब पार्षद सृष्टि के पूर्व रहते हैं, ऐसा बोला गया है। तो प्रभु जी जैसे कि श्रीवास पंडित तो इसीलिए नारद बोला मुनि, गया है, इसलिए बोला गया है सृष्टि के पूर्व रहता है, क्योंकि प्रलय तो होता ही नहीं है। प्रलय तो सिर्फ जड़ जगत का ही होता है, भगवान का धाम का तो प्रलय होता ही नहीं है। तो पार्षद लोग तो हमेशा ही रहेगा, नित्य पार्षद। जैसे बोला गया ब्रह्मा और शिव जी नहीं थे उस टाइम। तो जैसे श्रीवास तो नारद मुनि के अवतार है क्या ना। बोला गया है? ब्रह्मा शिव नहीं थे, कौन सा लाइन बताइए हमको पहले। बताइए। नहीं, सृष्टि के पूर्व तथा प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद विद्यमान थे। भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता था। इसकी पुष्टि बौद्धिक सत्य में हुई है। वासुदेव वा इदम अग्र। अरे आप पूरा ही पढ़ रहे क्यों? जो प्रश्न है वो वाला लाइन पढ़िए ना, ठीक। 3-4 सेंटेंस पढ़ लिया। प्रश्न कौन सा है वो सेंटेंस बस पढ़िए। यही तो है इसका नीचे लाइन में। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का। क्या तो प्रश्न क्या है आपका? तो मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा शिव नहीं थे, ठीक है, तो नारद मुनि तो श्रीवास के अवतार है ना, तो वो कैसे आ गए सृष्टि के पूर्व? इन दोनों के बाद ही तो आए ना नारद मुनि, तो वो पहले कैसे आ गए? सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं थे। तो इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये शिव जी जड़ जगत वाला शिव जी का बात किया जा रहा है। शिव जी का पोस्ट इटर्नल है कैलाश धाम में, सदाशिव रूप में। क्लियर है ना ये? तो ये शिव जी जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करके प्रलय के समय, उस ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है उस कार्य के लिए है। तो शिव जी जो सदाशिव है वो अपने आप को एक्सपैंड करता है और जड़ जगत में महाकाल रूप में बोलिए या रुद्र रूप में बोलिए, भगवान का तमोगुण का अवतार रूप में रहता है। तो वो नहीं था। और ब्रह्मा जी तो नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सृष्टि नहीं हुआ तो ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी क्यों रहेगा? यही बता रहा है इधर कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं थे। आप अभी बोल रहे हैं कि नारद मुनि थे या नहीं थे। तो नारद मुनि, मैंने मोहनगन प्रभु से पूछा था, एक्चुअली नारद मुनि तो है दासी पुत्र, उनका अलग अलग जन्म लिया, लेकिन भगवान का शक्तावेश अवतार होने के नाते प्रभु ने जो हमको समझाया और मैंने जो समझा, ये नारद मुनि भगवान का नित्य पार्षद है। वो भगवान के धाम में नित्य विराजमान करता है। ओके, हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक। एक तो है नारद मुनि का स्टोरी जो हम लोग श्रवण करते कि दक्ष प्रजापति वो उसको श्राप दिया था जब उनका हर एक बच्चों का झुंड को ब्रह्मचारी बना रहा था, है ना? मालूम है ना भागवतम में? फिर वो श्राप दे दिया, अरे तुम हमारा जितना में संतान उत्पत्ति करो सबको तुम ब्रह्मचारी बना रहे, सृष्टि कैसा होगा? मेरा आगे वंश बढ़ेगा कैसे? तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम हर एक आजीवन कहीं एक जगह टिकोगे नहीं, घूमते रहोगे ऐसे। तो नारद मुनि तो ये जो लीला है इसके, ये तो है ही, कोई बोल सकता है कि तो दासी पुत्र था, ये तो नारद मुनि बन गया, पहले गंधर्व था फिर दासी पुत्र बना फिर नारद मुनि बना। हाँ, ये तो है एक पार्ट नारद मुनि का, लेकिन और एक पार्ट है कि नारद मुनि भगवान का नित्य पार्षद है, इटर्नली रिसाइड्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ভগবান এখানে বলছেন যে জড় সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য সহকারে তিনি বিরাজमान ছিলেন। सृष्टि के एकदम जड़ सृष्टि पूर्वे, याद रखिएगा सृष्टि के पूर्वे नहीं लिखा, क्योंकि प्रलय तो सिर्फ ये जड़ वाला पार्ट में ही होता है, मटेरियल वाला पार्ट में तो प्रलय होता है, ऊपर वाला स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो प्रलय होता ही नहीं, कभी सवाल ही नहीं होता है। যখন কোনো রাজার কথা চিন্তা করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজার সচিব, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির কথাও মনে আসে। কোনো রাজার যদি এই রকম ঐশ্বর্য থাকতে পারে তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য যে কি বিশাল হতে পারে তা সহজেই অনুমান।
তাই ভগবান যখন বলে অহম, তখন বুঝতে হবে যে তিনি তার সমগ্র ঐশ্বর্য ও শক্তি সহ পূর্ণরূপে বিরাজমান। যৎ শব্দটির দ্বারা ব্রহ্ম বা ভগবানের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা বোঝানো হচ্ছে, মানে ব্রহ্মজ্যোতিকে সমঝা যায়। ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে তৎ ব্রহ্ম নিষ্কলম অনন্তম অশেষ ভূতম। ব্রহ্মজ্যোতি অন্তহীন ভাবে বিচ্ছুরিত হয়। इसका हिंदी क्या लिखा है ये सेंटेंस का? ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। माने ब्रह्म ज्योति पूरा फैला हुआ है, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल स्काई में, चिद जगत, चिद आकाशे ब्रह्म ज्योति पूरा फैला हुआ है। সূর্য যেমন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করলে তার রশ্মি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তেমনি পরম তত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তার শক্তি বা রশ্মির ছটা ব্রহ্ম अंतहीन भावे विच्चुरित है। लेकिन ये कहाँ होता है? भगवान के धाम में, क्योंकि यहाँ जो रोशनी है ये तो ब्रह्म ज्योति का रोशनी नहीं है हम लोग का जड़ जगत में, ये तो सन एंड मून का रोशनी है। ब्रह्म থেকে জড় জগতের প্রকাশ হয়, ঠিক যেমন সূর্য রশ্মি থেকে মেঘের প্রকাশ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে গাছপালা জন্মায় এবং গাছপালা থেকে ফল ফুল শাকসবজি উৎপন্ন হয়, যা আহার করে অন্য সমস্ত প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান দেহ নির্গত রশ্মির ছটা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। तो बोल रहा है ब्रह्म ज्योति ये सृष्टि का कारण है जड़ जगत का। ब्रह्म ज्योति निर्विशेष, किंतु সেই শক্তির উৎস হচ্ছেন সবিশেষ ভগবান। समझ में आया? ब्रह्म ज्योति क्यों पूरा सृष्टि का कारण है? बोल रहा हूं ना, क्लास दिन पे दिन डल होते जा रहा है, कोई हाँ ना कुछ नहीं बोलता है। मैंने ब्रह्मज्योति से प्रकाश, भगवान से ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति से प्रकाश से प्रकाशित होकर सृष्टि होती है, जिसका जड़ जगत पर प्रभाव पड़ता है। तो कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम निर्विशेष ब्रह्म। तो अगर बोला जाए कि कृष्णा इस जड़ जगत का कारण है और बोला जाए कि ब्रह्म ज्योति इस जड़ जगत का कारण, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तार धाम বৈকুণ্ঠে तार থেকে निर्गत ये ब्रह्म ज्योति विच्चुरित है। तो ब्रह्म ज्योति का स्पिरिचुअल स्काई एक्चुअल कहाँ यूज होता है? वो जो लाइट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होता है ना। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आलोकित है वो तो ब्रह्म ज्योति के कारण, भगवान का रश्मि छटा के कारण। ये सिरन में गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये हम लोग को जो ब्रह्मांड है उसका बाहर में ही है, ये ब्रह्मांड का अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन हर जगह में ब्रह्म ज्योति में ही ब्रह्मांड सब भासता है। यही ये सत्य माता जी। वो जो प्रकाश जो आ रहा है तो भगवान के शरीर से ही आ रहा है ना, तो वो लाइट को हम ब्रह्म ज्योति क्यों बोलते हैं? सॉरी, निर्विशेष क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट तो सविशेष नहीं बोल सकते ना, लाइट को कैसे सविशेष बोल सकते हैं? है तो निर्विशेष। लाइट को सविशेष कैसे बोल सकते हैं आप? लाइट में तो कॉमन लाइट का क्या बोलेंगे अभी? लाइट को सविशेष कैसे बोल सकते हैं? वो प्रकाश जो है भगवान का शरीर से ही आ रहा है ना। हाँ, शरीर से आ रहा है तो भगवान सविशेष है, लेकिन भगवान का शरीर से जो लाइट निकल रहा है उसको सविशेष कैसे बोले? वो तो निर्विशेष ही है। उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए लाइट का कोई रूप नहीं होता है ना। लाइट का कोई हाँ कोई आकार नहीं होता, कोई नॉट शेपलेस। ब्रह्म থেকে জড় জগতের প্রকাশ হয়, ঠিক যেমন সূর্য রশ্মি থেকে মেঘের প্রকাশ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে গাছপালা জন্মায় এবং গাছপালা থেকে ফল ফুল শাকসবজি আদি উৎপন্ন হয়, যা আহার করে অন্য সমস্ত প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান দেহ নির্গত রশ্মির ছটা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কারণ। ব্রহ্মজ্যোতি নির্বিশেষ, কিন্তু সেই শক্তির উৎস হচ্ছেন সবিশেষ ভগবান। हाँ, तो सविशेष भगवान निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को उत्पन्न किया है। तार धाम বৈকুণ্ঠে তার থেকে নির্গত এই ব্রহ্ম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তিনি কখনোই নির্বিশেষ নন।
যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মের উৎস সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তারা ভ্রমবশত মনে করে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছে চরম বা পরম লক্ষ্য। কিন্তু উপনিষদে বলা হয়েছে যে নির্বিশেষ রশ্মিক ছটার আবরণ ভেদ করে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ দর্শন করতে হয়। उपनिषद बोला আছে। कौन सा उपनिषद तो मालूम नहीं। एनीवेज तो ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है ना, हिरण्मय तो श्लोक है ना, वही वाला श्लोक 11 नंबर। हाँ, कि हे प्रभु आपका ये रूप, हाँ ये इसको भेद करके भगवान, एक्चुअली ब्रह्मज्योति को अगर भेद करेंगे आप मुकुंद प्राण प्रभु, तो फिर तो आप भगवान के धाम में जाकर भगवान को डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया भगवान अपने आवरण को हटाइए, मैं इसे दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे करके कुछ श्लोक में बताते हैं, भगवान प्लीज आपका ये हिरण्मय रूप को हटाइए, क्या ऐसे कुछ ना, आवरण को हटाइए। কেউ যদি সূর্য কিরণের উৎস সম্বন্ধে জানতে চায়, তাহলে তাকে সূর্য কিরণের স্তর অতিক্রম করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করতে হবে এবং তারপর সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্যদেবকে দর্শন করতে হবে। পরম তত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান, এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে সেই তত্ত্বই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সৎ মানে কার্য, অসৎ মানে কারণ, এবং পরম শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরম তত্ত্ব, যিনি হচ্ছেন কার্য ও কারণের অতীত। সৃষ্টির কারণ হচ্ছে মহৎ তত্ত্ব বা জড়শক্তির সমষ্টি, এবং তার কার্য হচ্ছে সৃষ্টি। अभी तक समझ में आया ये पैराग्राफ का 2 लाइन? किंतु आदिते समझाइए ना। सृष्टिर कारण হচ্ছে মহৎ তত্ত্ব বা জড়শক্তির সমষ্টি। महत तत्व माने 24 तत्व, जो महत तत्व सब, ये सृष्टि का कारण। भगवान दृष्टिपात करता है और पूरा सृष्टि हो जाता है। सोचिए, माने ये कुछ क्या बोले, भगवान अभी कुकिंग करेगा तो कुकिंग के लिए दाल चावल सब कुछ भगवान दे देते, तेल ऑयल सब कुछ दे देता है, वही कुछ महातत्व जैसा। हर एक जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये जड़ जगत को बनाने के लिए जितना भी सामग्री चाहिए सब कुछ, ये महत्त्व। किंतु आदिते कार्य अथवा कारण কোনোটাই ছিল না, তার প্রকাশ হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবান থেকে, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে কালের প্রকাশ হয়েছিল। तो जड़ जगत सृष्टि के आगे तो ये सब कुछ था ही नहीं, भगवान ही थे। तो भगवान ने एक एक करके ये सब सृष्टि किया, महातत्व काल ये सब सृष्टि किया, टाइम फैक्टर। अभी जड़ जगत, भगवान के धाम में तो ये सब कुछ है नहीं, जड़ वस्तु कुछ है ही नहीं, टाइम फैक्टर कुछ है ही नहीं चीज जगत में। लेकिन जब जेल बनाना गया तो जेल जड़ जगत बनाने के लिए जब ये सब दरकार हुआ, ता वेदांत सूत्रे जन्मदशा যত বর্ণিত হয়েছে। वेदांत सूत्र भाष्य हम लोग मालूम है, ये श्लोक जन्मदस्य जत, ये कहाँ है, ये भागवतम में जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर, भागवतम का पहला श्लोक। वही जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर भागवतम। जड़ सृष्टिर सूक्षाति सूक्ष्म कारण বা মহত্তত্বের উৎস হচ্ছেন পরম ভগবান। जड़ सृष्टि सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है जड़ जगत में, एक चीज बताइए सबसे सूक्ष्म चीज क्या है जड़ जगत में? बैक्टीरिया, अमीबा। सबसे सूक्ष्म चीज होगा, हाँ हिरण्य गौरंग प्रभु, अहंकार। अहंकार, हाँ सूक्ष्म शरीर नाम ही तो है सूक्ष्म, या आत्मा भी सूक्ष्म ही है, सबसे सूक्ष्म तो लग रहा है आत्मा ही होगा। तो ये सब का कारण कौन है? साक्षात भगवान ही है। भगवान ने ये सब मन बुद्धि अहंकार बोलेंगे ना, वो भी है सूक्ष्म, नाम ही तो है सूक्ष्म शरीर, तो ये भी तो भगवान ने दिया। इसका एक एक अधिष्ठात्री देवता भी है। मन का अधिष्ठात्री देवता शायद अनिरुद्ध है जितना मुझे को याद है, एक प्रद्युम्न है, एक मन बुद्धि अहंकार, हर एक का अधिष्ठात्री देवता भी, तो सब तो भगवान से आया है। मन के अनिरुद्ध, प्रद्युम्न बुद्धि के, और अहंकार संकर्षण। সেই তত্ত্ব শ্রীমদ্ ভাগবত ও ভাগবত গীতায় সর্বতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, that everything comes from Krishna, even the most सूक्ष्म चीज जो जिस जड़ जगत में वो भी भगवान से आया है।
ভাগবত গীতায় ভগবান বলছেন অহং সর্বস্ব প্রভব, আমি হচ্ছে সবকিছুর উৎস। बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार का प्रश्न नहीं आएगा, चूंकि ये तो जड़ जागतिक है हमको जहां तक लगता है। और जो आत्मा, एक सेकंड आस्ते आस्ते बोलिए, 10 चीज मत बोलिएगा एक साथ, सब चीज तो समझना पड़ेगा ना। आप बोला यहाँ पर प्रश्न नहीं आएगा मन बुद्धि अहंकार का, क्या टॉपिक चल रहा है मालूम है कि इस जड़ जगत में जो भी चीज भगवान ने दिया है, सब चीज भगवान एक सेकंड सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी भगवान से ही आया है। तो ये मन बुद्धि अहंकार जो जड़ जगत में है, क्या ये भगवान ने नहीं दिया है? हाँ ये, तो फिर क्यों प्रश्न नहीं आएगा? लेकिन सूक्ष्म शरीर बोल के आत्मा को ही समझाया जा गया। हर सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि अहंकार को बोला जाता है, थोड़ी आत्मा को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर? नहीं, ভগবত গীতায় ভগবান বলছেন অহং সর্বস্ব প্রভব, আমি হচ্ছি সবকিছুর উৎস। জড় সৃষ্টি অনিত্য হওয়ার ফলে কখনো তার প্রকাশ হয় এবং কখনো তা অপ্রকাশিত থাকে। ठीक है, ये समझ में आया? ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मेरा समझ में आया है वो ब्रह्मांड है, वो माने कारण सागर में भासता है, एक साइड जल में डूब के है और जो दूसरा साइड है वो ब्रह्म ज्योति में है। अब ब्रह्म ज्योति उसका अंदर एक सेकंड ब्रह्मांड का एक साइड ब्रह्म ज्योति में है, ब्रह्मांड का एक साइड ब्रह्म ज्योति में है, उसका अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं घुस पाता, इसलिए इधर अंधकार है। जो आवरण है ब्रह्मांड का, जो आवरण है वो उसको ब्रह्म ज्योति नहीं घुस पाता है। हाँ नहीं घुस पाता, मालूम है। हाँ, नहीं घुस पाता है, इसलिए अंधकार है ब्रह्मांड का अंदर। लेकिन ब्रह्म ज्योति भी एक साइड है और कारण सागर भी एक साइड है। ऐसा ही है जैसे फुटबॉल एक्टिव है, पानी में हम लोग उसको भाषा देगा तो क्या होगा, वायु में एक साइड उसको घेर के रखेगा और नीचे का साइड पानी में रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड ऐसे भासता है। हमको वही उपलब्धि माने जो जितना शास्त्र से हमको मिला है यही बात। জড় সৃষ্টি অনিত্য হওয়ার ফলে কখনো তার প্রকাশ হয় এবং কখনো তা অপ্রকাশিত থাকে। तो ये जड़ सृष्टि जो है, ये जड़ जगत जो है, ये अनित्य है, टेम्पररी है, हाँ या ना? उसीलिए कभी ये प्रकाशित रहता है। अभी सत्यभामा माता जी, ये जो अभी जो आप ब्रह्मांड में है, ये प्रकाशित है या अप्रकाशित है? भगवान के शरीर से लाइट आता है तब प्रकाशित है। শিবাস প্রভু, এই যে এখন যেখানে আমরা আছি জড় জগতে, এটা প্রকাশিত না অপ্রকাশিত? प्रकाशित। हाँ ऑब्वियसली प्रकाशित है, नहीं तो हम लोग सब महाविष्णु के अंदर में लेटे रहते हैं, है ना? ये जो ब्रह्मांड अभी जो इसमें हम लोग है तो प्रकाशित है। तो ये तो अनित्य है, माने टेम्पररी है, कभी भी अप्रकाशित हो सकता है, कभी भी प्रकाशित हो सकता है, वही बताया जा रहा है। हाँ माता जी। प्रभु जी, इसको प्रकाशित नहीं, इसको प्रकट और अप्रकट बोलेंगे ना। ये यहाँ जो लिखा है देखिए, प्रकट मतलब दिखना और अप्रकट मतलब नहीं दिखना। ये भी प्रकाशित अप्रकाशित ज्यादा फेर। प्रकाशित मतलब तो ये हो गया कि मतलब भगवान का नाम क्या प्रभुपाद जी लिखा है वो देखिए ना। জড় সৃষ্টি অনিত্য হওয়ার ফলে কখনো তা প্রকাশ হয়, প্রকাশ মানে ম্যানিফেস্ট, এবং কখনো তা অপ্রকাশিত থাকে, আনম্যানিফেস্ট, ঠিকই তো? কিন্তু তার শক্তির উৎপত্তি হয় পরমেশ্বর ভগবান থেকে। সৃষ্টির পূর্বে কার্য বা কারণ কিছুই ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তার পূর্ণ ঐশ্বর্য পূর্ণ শক্তি সহ বর্তমান ছিলেন। ठीक है, सृष्टि के स्टार्ट में, सृष्टि माने सृष्टि जब वर्ड सुनेगा हमेशा याद रखना इस जड़ जगत का सृष्टि का बात कर रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का सृष्टि का सवाल ही नहीं उठते, वो तो हमेशा है। तो सृष्टिर पूर्वे कार्य বা কারণ কিছুই ছিল না, देयर वाज नो कॉज एंड इफेक्ट, दरकार ही नहीं था ये मटेरियल वर्ल्ड का। किंतु परमेश्वर भगवान, लेकिन भगवान तार पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण शक्ति सह वर्तमान ছিলেন। भगवान अपना ऐश्वर्य धाम पार्षद सब कुछ था ऊपर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा पुण्य था, जड़ जगत में कुछ नहीं था, लेकिन वो जो 3/4 है 75% वो तो पूरा था एकदम। अगला पैराग्राफ, पश्चात अहम शब्द
দুইটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এই শব্দ দুটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে प्रलय परेও भगवान वर्तमान থাকেন। अभी सृष्टि के पूर्व के बारे में अगला पिछले पैराग्राफ में बोला, अभी प्रलय के बाद में भी ठाकुर जी रहता है। ऐसा नहीं कि प्रलय हो गया तो क्योंकि भगवान का धाम तो इफेक्ट नहीं होता प्रलय से। जड़ सृष्टि যখন লয় প্রাপ্ত হয় তখনও भगवान स्वयं তার বৈকুণ্ঠ লোক সমূহে বিরাজ করেন, क्योंकि वैकुंठ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जरा जगत प्रलय हो गया तो भगवान का धाम में कोई फर्क आएगा क्या? कुछ नहीं फर्क आएगा। সৃষ্টির সময়ও ভগবান অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকে বর্তমান থাকেন, আবার একই সঙ্গে তিনি জড়জগতের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেও পরমাত্মা রূপে বর্তমান থাকেন। ব্রহ্ম সংহিতায় তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, গোলোক এব নিবসত কাট দেওদর্শী। যদিও তিনি পূর্ণ রূপে গোলক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, কিন্তু তবুও सर्वव्याप्त अखिलात्मा भूत, अखिल आत्मा, जितना भी कोटि कोटि आत्माएं हैं इस जड़ जगत में, हर एक में भूत भगवान प्रवेश करके परमात्मा रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में है। यद्यपि भगवान वैकुंठ लोक में विराज कर रहे, लेकिन भगवान अपने आप को एक्सपेंड भी किया है परमात्मा रूप। भगवाনের এই সর্বব্যাপ্ত রূপকে বলা হয় परमात्मा। इंग्लिश में क्या लिखा है? ऑल परवेडिंग ना। This all pervading feature of Lord is called Paramatma. हाँ माता जी। प्रभु जी, ये भगवान के जितने स्वांश निकलते हैं वो भी गर्भ क्षीरोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु से? संकर्षण से निकलते ना, माने आप अवतारों का बात कर रहे हैं या स्वांश माने तो अवतारों की बात कर रहे होगा। हाँ, भगवान के जो राम, हाँ वो तो हमको जितना दूर हमको ज्ञान है, वो जो सेकंड चतुर्व्यूह है, सेकंड चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनसे तो महाविष्णु, हिरण्मय गौरांग प्रभु क्षीरोदक्षाई विष्णु से होते हैं। क्षीरोदक्षाई हम लोग का जो ब्रह्मांड में जितना अवसर आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं बोल के भागवत में लिखा है। लेकिन जो गर्भोदक्षाई विष्णु, उनसे क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। ये कैसे होगा? वो तो परमात्मा के रूप में। अच्छा ठीक है, अभी ये तो चर्चा का टॉपिक नहीं है, अभी जो चर्चा चल रहा है इधर बुक में हम लोग वापस आते हैं। तो भगवान ये सर्वव्याप्त रूप के बोला है परमात्मा। ठीक है, सर्वव्याप्त क्यों? हर एक जीव में भगवान है परमात्मा रूप में। भगवद गीताয় सप्तम अध्याय 6 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, अहं कृष्णस्य अहं नहीं क्या ट्यून होगा, अहं कृष्णस्य जगत प्रभव। जड़ सृष्टि হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির একটি প্রকাশ। জড় উপাদানগুলি ভূমির জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার হচ্ছে ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি এবং জীব হচ্ছেন তার उत्कृष्ट शक्ति। अभी मेरा एक आप लोग से प्रश्न है, 3 प्रकार का शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। अगर हम काउट क्विज करें और आप लोग को बोले ऊपर से नीचे अरेंज कीजिए, ऊपर से नीचे माने टॉप में सबसे शक्तिशाली और नीचे सबसे जड़, तो कैसे सजाइएगा? ठीक है, प्रश्न समझ में आया? उल्टा पुल्टा उत्तर मत दीजिएगा। प्रश्न अगर नहीं समझ में आया पूछिए तो फिर से बोलूंगा, लेकिन उल्टा पुल्टा उत्तर मत दे दीजिएगा। अंतरंगा हाथ उठाया है महामंजरी माता जी, बोलिए महामंजरी माता जी। प्रभु पहले बहिरंगा शक्ति, पहले माने सबसे शक्तिशाली बहिरंगा? नहीं, अंतरंगा शक्ति भगवान से जो उद्भूत होती है, अंतरंगा फिर शक्ति, उसके माया देवी बहिरंगा शक्ति, उसके तटस्थ शक्ति जो गलत गलत गलत, हमको मालूम था यही उत्तर आएगा, गलत। यस, किसी का दूसरा उत्तर है? यस श्रीवास प्रभु। नीचे से जी प्रभु जी मेरा है। नीचे से ऊपर से जाना है ना। माता जी म्यूट रहिए। अंतरंगा, अंतरंगा, तटस्थ, बहिरंगा। हाँ, ये है सीक्वेंस। अंतरंग के बाद तटस्थ आएगा। क्यों? क्योंकि तटस्थ में अंतरंगा का पार्ट है। ठीक बोल जी, अंतरंगा शक्ति यानी जीव तो भगवान का ही अंश है, तो इसीलिए अंतरंगा शक्ति के बाद तटस्थ आता है।
और फिर बहिरंगा। बहिरंगा तो पूरा 100% मटेरियल। समझ में आया? प्रभु, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही हम लोग समझ में आया था कि पहले अंतरंगा है, फिर बहिरंगा है, और उसके बाद तटस्थ है। जो तटस्थ है, ये तीनों के बारे में बोला गया था, लेकिन सीक्वेंस तो कोई पूछा नहीं। हम तो पहली बार लग रहा है आप लोग को पूछ रहे हैं। तो पहली बार आप कभी कोई पूछा जा रहा है आप लोग से कि अगर सीक्वेंस में सजाए तो क्या आएगा? सीक्वेंस ऑफ पावर। तटस्थ शक्ति तो हमेशा बीच में रहती है। हाँ, नाम ही तो है तट। कभी इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। और भगवान का अंश है प्रभु जी। तटस्थ शक्ति जो है वो भगवान का। आज जो बताया ना, हम पहली बार हम लोग जान पाए आज ये वाला जो आप बताए कि तटस्था शक्ति, हम लोग को ये अब क्लियर नहीं था। अभी जो आप बोले ये लाइन तब क्लियर हुआ कि तटस्था शक्ति में अंतरंगा शक्ति का कुछ अंश है। हाँ, बिकॉज भगवान अंतरंगा शक्ति का तो प्रकाश तटस्थ शक्ति है। जीव जो है वो तो भगवान का ही अंश है। वो तो पूरा स्पिरिचुअल है। अगर जीव अगर जीवात्मा वो तो पूरा भगवान का ही अंश है, तो पूरा स्पिरिचुअल है। और बहिरंगा शक्ति तो पूरा मैटर है। पूरा मैटर क्या बोले? मैटर को हिंदी में बोलते जरा पूरा वो तो भगवान की परछाई है। आगे उसीलिए देखिए क्या लिखा है, ये जो जड़ उपादान गुली भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार হচ্ছে ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি। নিকৃষ্ট মানে सबसे घटिया बोलेंगे नहीं, মানে सबसे निम्न, सबसे नीचू वाला शक्ति है। एवं जीव হচ্ছে तार उत्कृष्ट शक्ति, माने तटस्थ शक्ति उत्कृष्ट माने उससे ऊपर है, माने बहिरंगा शक्ति से ऊपर है। हिंदी में पढ़िए वो लाइन महामंजरी माता जी। भगवान की अपरा शक्ति कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है, और सारे जीव उनकी परा श्रेष्ठ शक्ति है। ठीक है, माने उससे ऊपर है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति से भी ऊपर है। नहीं, ये नहीं बोलना ठीक होगा। आगे, যেহেতু ভগবানের শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ। সূর্য রশ্মি, সূর্যলোক ও তাপ সূর্য থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিউট করিয়ে তারা সূর্য নয়। মিউট করি মহামন্ত্রী মাতাজি। তারা হচ্ছে সূর্যের বিভিন্ন শক্তি। তেমনি জড় সৃষ্টি ও জীব হচ্ছে ভগবানের শক্তি, এবং তারা ভগবান থেকে যুগপৎ ভিন্ন ও अभिन्न। ठीक है, तो भगवान से जीव एक भी है और अलग भी है। भगवान से ये जड़ जगत एक भी है और अलग भी है। एक क्यों है? क्योंकि भगवान से निकला हुआ है शक्ति। शक्ति और शक्तिमान एक है। कोई बोल सकता है शक्ति और शक्तिमान एक है, इसलिए ये जड़ जगत भी भगवान का ही शक्ति है। हाँ, लेकिन भगवान अलग क्यों है? क्योंकि भगवान इससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान इससे कुछ प्रभावित नहीं होता है। भगवान इस जड़ जगत का त्रिगुण से कुछ भी अफेक्टेड नहीं होता है। भगवान अपने धाम में नित्य विराजमान है, और भगवान नियंत्रण भी नहीं करता है। अगर हम बोले जड़ जगत का नियंत्रण भगवान नहीं करता है, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। अगर मैं बोलूं कि भगवान इस जड़ जगत का नियंत्रण करता है, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। दोनों ही सही है। भगवान अपने बहिरंगा रूप शक्ति से जड़ जगत का नियंत्रण करता है, लेकिन फिर भी भगवान अलूफ, अपने आप को अलग रहता है। वैकुंठ धाम में अलग उनका धाम है। তাই ভগবান বলছেন আমি সব, কারণ সবকিছুই তার শক্তি এবং তাই তার থেকে অভিন্ন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। बोल हरि बोल चैतन्य चैतन्य जय, श्रील प्रभुपाद जय।